Am I audible? Great. A very good evening, everyone, and welcome back. I think the entire day has been absolutely phenomenal. Right from learning from what the top distributors in the country are doing to what Chandu Champion Ki Grit was all about, to see all the manufacturers creating magic on the stage. Now is the time when we have created, and all credit to Kanakji for immaculately planning the entire day to have reserved the best for the last. We have the showstopper amongst us. I'm sure it's no surprise. Chetan Bhagat ji is with us. So please give a huge applause to none other than Chetan Bhagat. I don't think he is a name that requires any introduction. I'm sure हर सुबह especially Sunday को जब हम लोग सुबह उठते हैं और अपना Times of India पढ़ते हैं, एक कॉलम जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, which is Chetan ji's. How many of you can resonate with this? So many hands right there. A little about sir, while not much of required because he has been an author and a speaker, but still, क्योंकि मेरे को एक काम दिया गया, मैं थोड़ा सा करूँगा सर. I am IIT Delhi, I am Ahmedabad. एंड उसके बाद ये लगता है कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद कौन क्या ही करेगा, कॉर्पोरेट में जाएगा, बट ही चोज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट. ही केम एंड स्वेप्ट द वर्ल्ड ऑफ बुक्स बाय ऑथरिंग 14 ब्लॉकबस्टर बुक्स. और कुछ बुक्स के ऊपर तो मूवी भी बन गई है. सम ऑफ द बुक्स, इफ आई कैन मेंशन, 5 Point Someone in 2004, One Night at the Call Center in 2005, The 3 Mistakes of My Life in 2008, 2 States in 2009, Revolution 2020 in 2011, Half Girlfriend in 2014, One Indian Girl 2016, The Girl in the Room 105 in 2018, One Arranged Murder in 2020, 400 Days in 2021, and of course, a lot many more. Chetan ji is a very popular motivational speaker and has spoken at more than 300 organizations spanning not just in India, but kareeb 50 cities across the world. Also, just to tell you, he has also been featured in the Times magazine in the list of 100 most influential people in the world in the year 2010. His stellar education and diverse professional background makes him an ideal person today to share his thoughts, to share his experiences on topics like leadership, passion, values, team building, motivation, and so much more. He has been speaking in various organizations, MNCs like Citibank, Bosch, and the list can go on. So they really don't want to take even a minute away from your space, and I would like to invite sir on the stage. Thank you so much, sir. Thank you. ये है अमीरों की कॉन्फ्रेंस, है ना? इतने स्पॉन्सर सर हमने आज तक नहीं देखे. मैंने कितनी स्पॉन्सर कॉन्फ्रेंसेस करी है, कोई आपको मना कर ही नहीं सकता. माय गॉड. तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेटर्निटी वाले हैं सारे. अभी मैं लिफ्ट में आ रहा था तो सर मुझसे पूछ रहे थे, सर आप क्या करते हो, मतलब राइटर हो पर बाकी टाइम कैसे पास करते हो अपना. बेसिकली कहना चाह रहे थे कि मतलब तुम कुछ करते तो हो नहीं. तो मैं फिर भी बोला, मैंने कहा यार मैं राइटिंग करता हूँ, ठीक है, कॉलम करता हूँ. फिर मैंने कहा छोड़ो यार, इनको तो सच्ची बताता हूँ. मैंने कहा सर ऐश करता हूँ. एक तरह से आप ही कह रहे हो ना फाइनेंशियल फ्रीडम, तो एक आध तो एग्जाम्पल चाहिए जो हो गया है फ्री. और ये मैं कभी भी मेरा पब्लिक में यही आता है कि ये राइटर बन गया. एंड हिंदी ओके? हाँ. अरे मेरे इन लॉज वगैरह को नहीं आती समझ सर, ऐसे आप यहाँ पे वहाँ के लोग आए साउथ के. इट्स ओके, आई डू अ मिक्स, इट्स ओके. सर मेजॉरिटी तो हिंदी वालों की होती है, मेजॉरिटी पे नहीं जा रहे. तो एनीबडी हु प्रेफर्स आई डू इंग्लिश.
ओके सर, ठीक है। तो पूछ लेना साथ वालों से, बता देंगे. तो आई मीन आस्क द पर्सन नेक्स्ट टू यू. आई I have to clarify. So जो चीज़ लोगों को बहुत पता है कि हाँ इन्होंने बैंक में काम किया और राइटर बन गए और बड़े बोल्ड थे एंड कुछ अलग करा लाइफ में. बट वन ऑफ द थिंग्स एंड आई डोंट नो व्हाई आई नेवर गेट टू टॉक अबाउट, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्ट है वो चीज़. एंड पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट बिकॉज लोगों को बस ऐसे चाहिए कि भाई एक दिन बैठे थे, एक दिन किताब लगी, हिट होगी. ऐसा नहीं है. द रीज़न, द बैकबोन ऑफ माई करियर जंप was financial planning. अगर ना की होती, अगर पैसे ना इन्वेस्ट किए होते, एक जितने भी साल मैंने बैंक में काम किया और वो इन्वेस्ट ना किए होते और वो ग्रो ना किया होता, तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू बिकम अ फुल टाइम राइटर. सीधी बात है. एंड ऐसे कोई मेरे में कोई इतनी कोई आपको पता है, नीदर डज माई एजुकेशन हैव लाइक कोई राइटिंग रिलेटेड इंग्लिश ऑनर्स या ऐसा कुछ नहीं है. इट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MBA, working in banking, and so it's not like it's something I have some exceptional background in writing, but a lot of good writers can never do it because they don't have the financial planning behind them and nobody wants to discuss it. लेकिन क्योंकि लोगों को overnight rich होना है, क्रिप्टो करना है, क्रिप्टो करा दो सर. NFT याद है किसी को? Yeah, so and that is the reason why I'm standing here today. That is the reason सर मैं कोई खास काम नहीं करता. 2007 में एक कंपनी थी, उन्होंने एक फ़ोन निकाला था. वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उठा के उनका शेयर खरीद लिए. उस कंपनी का नाम था एप्पल और वो फ़ोन था iPhone 1 रिलीज़ हुआ था 2007 में. वो लेके मैं बैठा हूँ और आप देख लो सर स्टॉक प्राइस उसका क्या फर्स्ट क्लास चल रहा है. तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब तो आप जब भी आप प्लीज़ आईफोन खरीदिए, थोड़ा मेरा उससे डिविडेंड बढ़ेगा. तो मेरे बच्चे उसी की वजह से पढ़ रहे हैं. सो आई एम सेइंग ये चीज़ें बड़ी अंडररेटेड है एंड ऑब्वियसली हमारे स्कूलों में नहीं सिखाई जाती. तो आई एम रियली ग्लैड दैट दिस कम्युनिटी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू डू दिस फॉर पीपल इन इंडिया. बिकॉज भैया नौकरी कर करके कोई अमीर नहीं हुआ आज तक, सिर्फ आए सुंदर पिचाई के. वो गूगल का CEO है, वो बिलियनियर बन गया. मतलब नौकरी करके नौकर है यार, नौकरी के में लिखा ही वर्ड है नौकर, लिखा हुआ है. तो फिर आप क्यों सोच रहे हो कि आप अमीर हो जाओगे नौकरी करके? तो आप काम अपना करना पड़ता है. और इफ यू ईदर यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर और यू बिकम अ इन्वेस्टर, और कोई तरीका नहीं है. किसी का तो खून चूसना ही है और वो उनका चूसना है जो नौकरी करते हैं. खून नहीं चूस रहे, वो अपनी मर्जी से चुसवा रहे हैं. तो खून इसके बाद बार है ना सर, है ना? इसके बाद तो खत्म है ना. मैं और आपको दारू के बीच में मैं हूँ. ओके गुड, दैट इज. तो मैंने बहुत गलतियाँ करी है यार लाइफ में. तो आज मैं आपको क्या फाइनेंस की बातें तो क्या सिखाऊँ, मैं आपको ओवरऑल लाइफ की थोड़ी बातें बताऊँगा जो मैंने करी है. आप सब लोग यंग ही लग रहे हो वैसे. मैं आई टर्न 50, आई एम 51 नाउ. हाउ मेनी ऑफ यू 30s 40s 50s? ओके सो वो मीडियन आसपास ही है सब. यू गाइज रिमाइंड मी अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड ऑनेस्टली बिकॉज दोस्तों का सर्कल तो मेरा अभी भी बैंकिंग का ही है. और IIT वालों का है, जो इंजीनियर्स हैं, टेक वालों का है. आई हैंग आउट विद प्रोफेशनल, दैट इज़ माई बैकग्राउंड. तो अभी भी आप लोगों को देख के मेरे को उन्हीं की याद आ रही है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज़ एप्लीकेबल इन जनरल. मैंने लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं. ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट, कोई मेरे को फॉर्मूला पता था लाइफ का. और उन गलतियों को कर करके जब मैं व्हेन आई टर्न 50 आई थॉट आई शुड हैव नॉट जस्ट अ नॉवल, इतने सारे मोटिवेशन टॉक्स के. तो एक सर्टेन रूल्स दैट आई फील कि क्या फाइनली वर्क करता है लाइफ में. तो उसके लिए मैंने एक 11 रूल्स ऑफ लाइफ नाम की एक बुक निकाली थी और उसी के बेस पे आज मैं वो टॉक करूँगा. नाउ वक्त कम है तो मैं सारे 11 रूल्स पे इतना टाइम नहीं स्पेंड करूँगा. मैंने सोचा इस ऑडियंस के लिए कौन से रूल पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है. तो फर्स्ट और लास्ट रूल पे हम टाइम स्पेंड करेंगे. लास्ट वाला तो आपके रेलेवेंट है, बट मे बी इट विल हेल्प यू. लास्ट वाला इज अबाउट फाइनेंस, बट मे बी द वे आई सी इट विल हेल्प यू पिच टू योर क्लाइंट्स कि भाई क्या हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड 11 रूल्स फॉर लाइफ गाइस. और ये रूल्स लाइक आई सेड मैंने गलतियाँ कर करके ही सीखे हैं. और ये रूल्स जो हैं ये एक्शनेबल हैं सारे.
ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो लाइफ में, और मैं चाहता हूँ कि आप करो। अब मैं 51 साल का हो गया हूँ, दुबई से मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है इतना करने की ये सब। अभी मैंने कहा ऐश का मुझे बहुत शौक है, ठीक है। कल भी मैं वापस जा रहा हूँ दुबई, कल सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट है, यार दोस्तों का प्रोग्राम बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ मैं मज़े करता हूँ, मेरे को कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन अगर मैं आता हूँ काम पे, आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस, मतलब कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने कितने टॉक सुने होंगे, और कई लोग टॉक सुनते हैं और कहते हैं हाँ भाई अच्छा बोले, है ना, अच्छा बोले। वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा बोले और फिर आप अपने काम पे निकल गए, इट्स नथिंग। आई देन बिकम अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट, आई बिकम अ पीस ऑफ कंटेंट। उससे अच्छा तो हम एनिमल पिक्चर ही देख लेते। यू नो, एक ही बात है। फर्क कब है? फर्क यह है कि मैं यहाँ आपके अंदर एक कोई चिंगारी लगा के जाऊँ, आप कोई एक्शन लें, ठीक है। आप अगर एक्शन लेंगे तो इसका मतलब है, तो मुझे पूरा ड्रामा करके यहाँ आके बुलाना, इतना मेरा इंट्रोडक्शन, हाँ जी इन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, का कोई फ़ायदा है नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सच बोलूँगा। अब ये बताओ कितना मिर्ची वाला सच चाहिए आपको? जैसे रेस्टोरेंट में डिश होती है ना, एक चिली वाला, 2 5 चिली वाला, हाँ मैक्स, ठीक है, हम मिर्चों वाला देंगे, इसलिए बुरा मत मानना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। आई विल गिव यू द ज्ञान, थोड़ा सा एक्शनेबल ज्ञान, ऐसे हवा वाला ज्ञान नहीं होगा कि ऐसे बुलंद फैसले ये वो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लाइफ में कर सकते हो। आपको मैं बोलूँगा विल यू टेक एक्शन, आपको बोलना है यस। क्योंकि भैया नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना कि यूट्यूब का वीडियो लगा देते हैं या 2 स्टेट्स के गाने लगा देते हैं, एक ही बात है, टाइम पास ही करना है तो, ठीक है। सो जो भी मैं आज बोलूँगा, विल यू टेक एक्शन, विल यू टेक एक्शन, गुड। अभी देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों का तो पता नहीं, तो पर मेरे जितने भी दोस्त 35 40 45 के हुए ना, अधमरे से हो जाते हैं, जैसे मौत आ गई है उनको, ठीक है। और उनको मैं कहता हूँ ना यार अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, ये करना है वो करना है, एक्साइटमेंट शो करो ना ज़्यादा। अरे यार छोड़ तू भी, अब हमारे बच्चों का टाइम है, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली, ऐसे बोलते हैं ना लोग ऐसे, तो मर जाओ, देन लेट्स जस्ट डाई यार। हो गए 40 45 के, अब क्या फ़ायदा, मर जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये घंटा एटीट्यूड है, ये बंद करो तुम, ठीक है। ये अगर करोगे तो क्या मोटिवेशन स्पीकर को सुनने आए हो? बच्चों को ले आते हैं, आप जाओ अपने कफन चुनो, ठीक है, कि भाई हमारा तो प्रोग्राम हो गया, हम तो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता सर, ये कोई वो नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर हैज टू बी दैट जेस्ट टू लिव एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। एक बार मरो, मरना तो है ही, गारंटी है, एक बार मरो ना यार, एक बार मरो, रोज नहीं मरना, ठीक है। जिस दिन मरेंगे उस दिन मरेंगे, बाकी दिन तो जिएंगे ना। दैट इज द एटीट्यूड नीड टू हैव। नेक्स्ट, ये सब मेरे बारे में है, ये बता चुके, मैं नहीं कर रहा ये सब, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये सब मैं करता हूँ, छोड़ो ये सब, अभी ये आपको पता ही है, मतलब दिस इज मोर माई इंट्रोडक्शन, अब सर ने दे दी, ठीक है। लेट्स जस्ट गेट टू 11 रूल्स। नंबर 1, और ये रूल्स जो है ना, ये मैं एंड में आपको 11 के 11 दिखाऊंगा, आपको अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान दो। लाइफ का पहला रूल, चाहे आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, चाहे आप CEO, चाहे आप राइटर हो, चाहे इंजीनियर हो, टेक वाले हो, कोई भी हो आप, डोंट इग्नोर योर फिटनेस। ये गई ना सर, तो जिंदगी में कोई मजा नहीं आया, ठीक है, कोई अयाशी का मजा नहीं आया, कुछ नहीं कर सकते फिर, ये सबसे जरूरी है। और मेरी इसमें गलत थिंकिंग थी, मैंने पूरी जिंदगी मोटापे में बिताई है, क्योंकि मेरी थिंकिंग गलत थी। मेरे को लगता था ये चॉइस है कि कुछ लोग करते हैं। मेरी स्कूल में मैं मोटा था और मेरे कुछ दोस्त, कोई बास्केटबॉल टीम में कैप्टन, कोई कुछ, तो मुझे लगता था वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है, मैं फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाता हूँ, एक ही बात है। मेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, ये भाग लेता है, एक ही बात है कि इज ट्रेडेबल है ये। ऐसा नहीं होता सर, ये नॉन नेगोशिएबल है। जिसने ये जो एक फिट लॉयर है वो अनफिट लॉयर से ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और ज़्यादा खुश भी होगा। जो फिट फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसका AUM ज़्यादा होगा और वो खुश भी होगा। मैं सच बता रहा हूँ ये बात, और आप नहीं मानते तो ट्राई करके देख लो, एक बार फिट हो जाओ फिर से मोटे हो जाना, कोई बात नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मरना तो सबको है,
है ना? लेकिन ऐसे नहीं मरना, ऐसे मरना। प्यार प्यार से मरेंगे ना, धीरे धीरे मौत की तरफ जाते हैं। ये क्या झटके में एक दिन हार्ट अटैक आया खत्म, यू नो? तो ये उसमें हेल्प करता है आपकी लाइफ को। फिटनेस की 3 कंपोनेंट, मैंने कहा ना इस रूल पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। फिटनेस की 3 चीज़ें हैं, ठीक है? और ये प्लीज़ मेरे को कहना कि फिटनेस तो यंग लोगों के लिए होता है, हमारे लिए तो बस मॉर्निंग वॉक काफ़ी है। नहीं, अजीब बातें मत करो। मॉर्निंग वॉक से कुछ नहीं होता, सिर्फ आंटियों को देखने जाते हो आप लोग पार्क में, कुछ नहीं, ठीक है? और वो दिखती भी नहीं है, ठीक है? आप सीरियस फिटनेस की तरफ बढ़ो, ओके? सीरियस, यस। तो 3 चीज़ें हैं फिटनेस में, एक है डाइट, एक है एक्सरसाइज और एक है स्लीप, ओके? तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि हज़ारों वीडियो आ चुकी हैं, हज़ारों बुक्स आ चुकी हैं, सबको पता ही है। वैसे डाइट की बात करते हैं, बड़ा सिंपल है सर, बड़े तरीके हैं बताने के कैसे करना है। सर आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन। चलो आपकी? जलेबी। कौन सा फेवरेट स्नैक? रबड़ी, भुजिया। कितने मारवाड़ी लोग यहाँ आए हैं? ये मुझे पता है। अच्छा, भुजिया, मेरा एक दोस्त है वो भुजिया बटर, ब्रेड पे भुजिया बटर लगा के खाते हैं। ओके, ठीक है सर, वेरी गुड। अब ये सारे आइटम पकड़ो आप। गुलाब जामुन जब अच्छे होते हैं, और अगर बहुत ही बढ़िया कमाल के गुलाब जामुन हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? कमाल का था यार, कमाल की रबड़ी हो सकती है, कमाल की भुजिया हो सकती है, कमाल के समोसे हो सकते हैं। ये कमाल का खाना आपको मार डालेगा। जो खाने में कमाल का पॉसिबिलिटी है वो खराब है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे गाजर है, गाजर अच्छी हो सकती है, गाजर कभी कमाल की नहीं होती। गाजर का हलवा हो सकता है, वो अलग चीज़ है, वो आइटम ही अलग है, वो गाजर की माँ बहन हो चुकी है उसमें, ठीक है? वो गाजर नहीं रही फिर, ठीक है? तो अरे बाप भाई फॉर जेंडर इक्वालिटी, ओके। गोभी अच्छी हो सकती है, गोभी कभी कमाल की नहीं होती, है ना? मूली अच्छी हो सकती है, कमाल की नहीं होती। अच्छा खाना खाओ जो सिर्फ अच्छा होता है, उससे कुछ नहीं होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा यार सब कुछ सही था इसकी डाइट में, गाजर ज्यादा खा गया, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है? यार टमाटर ज्यादा खा लिया यार इसने, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, टमाटर खा खा के मोटा हो गया, नहीं होगा। क्योंकि ये जो कमाल का खाना है इसको साइंटिफिक टर्म्स में बोला जाता है हाइपर पैलेटेबल फूड्स, मतलब वेरी वेरी टेस्टी फूड्स। व्हेन द फूड इज सो टेस्टी you don't know how much you are eating. You are eating 50 grams और 75 grams और 100 grams. क्या फर्क है 25 ग्राम रबड़ी में, बताना जरा? 2 चम्मच, कोई फर्क नहीं है। फर्क है 200 कैलोरीज का। 200 कैलोरी मल्टीप्लाइड बाय 36,000 कैलोरी हो जाते हैं अगर आप ये करते हो, और साल में होती है 72,000 कैलोरी। 7,000 कैलोरी पे किलो बन जाता है, 10 किलो बढ़ गया आपने, 2 चम्मच रबड़ी एक्स्ट्रा, इक्वलेंट। कभी 2 चम्मच एक्स्ट्रा रबड़ी हो गई, कभी कुछ और खा लिया, कभी एक शरबत पी लिया, कभी। हम तो मोटे हो गए, हम तो कुछ करते नहीं, हम तो कंट्रोल में खाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कमाल का खाने में कंट्रोल नहीं आता। सो लिमिट में खाओ। मैं ये नहीं कह रहा जीरो कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जीरो कोई कर नहीं सकता, बट इट शुड बी, यू शुड, आप उसके आगे हाथ जोड़ रहे हो कि भैया मैं समोसों के आगे हेल्पलेस हूं, इसलिए तू दूर रह मुझसे, कभी कभी खाऊंगा। और अच्छा खाना खाओ जितना मर्जी खाना है, जो डिशेस अच्छी ही हो सकती है, बस इसीलिए आए हम इस दुनिया में कमाल का खाना खाने। कमाल का खाना मौत की तरफ लेके जाएगा 100%, 100%, ठीक है? सेकंड चीज आती है फिटनेस। फिटनेस में सर एक कार्डियो होता है, सबको पता है, एक वेट्स होता है। वेट्स सबको करते हैं, वेट्स सबको, हमारी कंट्री में कल्चर नहीं है। सैर कर लो, योगा कर लो, वो भी ऐसे सिंपल योगा, थोड़ी प्राणायाम वगैरह, हो गया बस। अच्छी चीज़ है योगा, माइंड के लिए अच्छी चीज़ है, मोबिलिटी के लिए अच्छी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छी चीज़ है। फिट नहीं करेगी आपको, जो वो चीज़ कर नहीं सकती वो, अनलेस आप लाइक 5 घंटे रोज ऋषि मुनियों की तरह कर रहे हो, वो तो नहीं कर रहे। तो उससे 5 सूर्य नमस्कार इज गुड, बट इज नॉट गोइंग टू मेक यू फिट। यू हैव टू लिफ्ट वेट, बिकॉज
उससे आपका मसल बना रहता है। जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं हमारा मसल गिरता रहता है, लड़कों का भी लड़कियों का भी, एंड हमें चाहिए वो एक बहुत बड़ा रीजन जो बुढ़ापे में लोग सफर करते हैं कि वो अगर गिर जाते हैं, हमारे घर में किसी के आसपास होता है इनकी हिप की कोई फ्रैक्चर हो गया, एक बार हिप का फ्रैक्चर हो गया, यू नो क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके बाद लाइफ स्कोर नहीं रहती। जब आप में मसल रहता है, अगर आप गिरने लगते हो आपका हाथ रोक लेता है, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करती है आपको, तो उस जस्ट फॉर दैट अलोन यू नीड दैट मसल। ठीक है, दुनिया में सबसे बड़े मौत के कारण क्या हैं दिल टूटने के अलावा? हार्ट अटैक, यस, कैंसर, यस, डायबिटीज, शादी तो हाँ, ओके सर, अभी से ओके, बिग डिस्कशन। जो बड़े बड़े हैं, हाइपरटेंशन, मैं सर बड़ी कॉन्फ्रेंस में, मैं तो फार्मा कंपनीज की कॉन्फ्रेंस भी जाता हूँ। अभी मैं गया था गोवा में, एक वहाँ वो उनके डायबिटीज ग्रुप आया हुआ था और वो सेलिब्रेट कर रहे थे 20% ग्रोथ हो गई। इंडिया में 20% लोगों को और डायबिटीज हो गया, हमारी दवाइयाँ बिक रही है धड़ाधड़, वो, और मैं भी सेलिब्रेट कर रहा हूँ उनके साथ। फिर मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते सर हमें तो यही चाहिए ना कि लोगों को डायबिटीज होता रहे, अगर नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? तो सर ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं डायबिटीज से। तो ये सारी चीजें जो मेन डिजीज हैं, सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर, नॉट ऑल, बट डेफिनेटली हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक, people who exercise they have a 400% less chance of getting this। मतलब आपका 4 गुना चांस कम हो जाता है इन चीजों से मरने का। ऐसी कोई गोली नहीं बनी, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना जो इतना रिड्यूस कर दे रिस्क, बट एक्सरसाइज कैन डू इट। सो इफ यू डोंट एक्सरसाइज यू आर लाइक जस्ट प्लेइंग रशियन रूले। एक तरह से तो इतनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो और अपनी लाइफ के साथ जुआ खेल रहे हो। क्यों? क्योंकि आधा 1 घंटा जिम नहीं जाना। क्यों? 3-4 घंटे भी चले जाओगे ना हफ्ते में, मतलब 3-4 बाद 1-1 घंटा, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू योर लाइफ। सिर्फ पतले होने के लिए मत जाओ, पतले होने के लिए डाइट है। जिम में जाके आके गुलाब जामुन खाओगे, 3 चीजें हैं, तीनों साथ में करनी है। ये नहीं कि जिम चले गए तो अब तो खा सकते हैं। ये सोचो जिम जाते हैं इसलिए नहीं खाते, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। लास्ट चीज है स्लीप, जो लोगों को लगता है फिटनेस में कहाँ से आ गई है, पर है, क्योंकि आप जो भी करते हो वो फिटनेस में, स्लीप में ही रिकवरी होती है, स्लीप में ही बॉडी रिपेयर करती है। आप में से कितने लोग अच्छे से सोते हो? हाउ मेनी ऑफ यू गेट रेगुलरली गुड स्लीप? ओके, सो इट्स अराउंड 50%। 50% आर नॉट गेटिंग। आप मेरे को बताओ, आप मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हो कि वो बताएगा लाइफ में कैसे करना है, कैसे खुश रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। जो आदमी अच्छे से सो नहीं रहा वो कैसे खुश रह सकता है? मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे कल्चर में इसकी वैल्यू नहीं है। हम दोस्तों से मिलते हैं, हम कहते हैं तूने कौन सी गाड़ी लिया? मैंने Hyundai लिया, मैंने BMW ले ली, मैंने Mercedes ले ली। वाह वाह वाह, वेरी गुड। एक दूसरे को हम हायर रिस्पेक्ट देते हैं। कोई बोले यार मैं ना 6 घंटे सोता था, अब मैं प्रॉपर 8 घंटे सोता हूँ, ये नहीं डिस्कस करते हम, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वो Mercedes जो आपके गैराज में पड़ी है वो आपको ज्यादा खुशी देगी या रेगुलर स्लीप आपको ज्यादा अच्छी खुशी देगी? आप खुद ही सोचो, राइट? सो समथिंग वेरी फंडामेंटल है, स्लीप इज नॉट ओके एंड यू आर लिविंग योर लाइफ। फिर क्या काम होगा, क्या प्रोडक्टिविटी होगी, क्या फोकस होगा, क्या मूड होगा, क्या सेल्फ कंट्रोल होगा खाने पे, इन सारी चीजों पे इफेक्ट आता है। जो आदमी सोता नहीं है ठीक से वो खुश नहीं है और ना ही वो पीक परफॉर्मेंस में काम कर सकता है। वो कहाँ से ग्रोथ करेगा? आपका थीम है इस बार का ग्रोथ। आपको ग्रोथ चाहिए तो सो जाओ पहले। आई मीन रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियलाइज्ड इट। मेरा करियर जब व्हेन इट टुक ऑफ, एक टाइम था इट वाज लाइक सो क्रेजी, आई वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग, ऑलवेज हार्डली स्लीपिंग, एंड उसमें राइटिंग क्या आएगी? इफ आई हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली हाउ कैन आई राइट? एंड खुशी तो बहुत ही दूर चली जाती है। खुशी के लिए तो सोना जरूरी है। मैं सोने की बात कर रहा हूँ, किसी के साथ सोने की नहीं कह रहा, जस्ट इन केस। अब बोले सर हाँ वैसे स्लीपिंग में तो खुशी है। मास्टर योर इमोशंस, लाइक आई सेड, इमोशनल कंट्रोल जरूरी है लाइफ में। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दीज, बट यू नो यू नीड इमोशंस इन लाइफ, बट बहुत इमोशनल फैसले मत करो। जब व्हेन यू टेक लॉट ऑफ इमोशनल डिसीजंस इट डजंट एंड वेल।
वो गुलाब जामुन खाना भी एक इमोशनल डिसीजन ही होता है। अंदर से तो आपको पता ही होता है ठीक नहीं है मेरे लिए, पर यार अब मज़े आ रहे हैं तो ले लो। वो इमोशन में आदमी बड़े गलत गलत फैसले करता है, तो ज़रा ध्यान रखें। क्योंकि you guys anyway are finance professionals. In the markets also, people make emotional decisions all the time. This Warren Buffett has also said कि मार्केट में लोग मार्केट कभी इमोशनली मेच्योर नहीं होती, पैनिक करेगी, लालच करेगी। इसमें जो अपने इमोशन को संभाल लेता है एंड देयरफॉर अपने क्लाइंट्स को भी संभाले रखता है, those will do well. As far as your industry is concerned, it's highly applicable. So many times, market crashes. मेरी वाइफ सबसे पहले मोस्ट रिस्क एवर्स, बेच दे बेच दे बेच दे, गिर रहा गिर रहा गिर रहा, बेच दे बेच दे, बेचो बेचो। एंड आई हैव नेवर सोल्ड, नेवर, बिकॉज ठीक है यार, सब गरीब हो रहे हैं ना, हम भी गरीब हैं, ठीक है कोई बात नहीं। बट दैट पैनिक सेलिंग, या फिर ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब सब, दैट्स वेयर द मिस्टेक्स हैपन। सो डोंट डू दैट। लाइक आई सेड, दिस अप्लाइज टू लाइफ ऑल्सो। बहुत जल्दी इश्क में मत पड़ो, इमोशन की बात है वो भी, राइट। थर्ड, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। देखो यारो, ये सब मोटिवेशन एक जगह है। पहले तो तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटी देनी है लाइफ में। कोई नहीं आएगा कहने कि यार तूने बहुत घिस लिया, अब तू अपने लिए जी। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। हमारी इंडिया की सोसाइटी ऐसी है कि हम अच्छे हस्बैंड बनना चाहते हैं, अच्छी वाइफ बनना चाहते हैं, अच्छी बेटी बनना चाहते हैं, अच्छी बहन, अच्छा भाई, अच्छा पड़ोसी, अच्छा कोलीग। हम लोगों से चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा मार्क्स दें, टिक दें, हाँ वेरी गुड, गुड फादर, गुड सन, गुड ब्रदर, ये वो। उस चक्कर में हम लोगों को खुश करने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। और कहीं ना कहीं व्हाट वी वांट गोज अवे। सोचा सबने होगा यार एक दिन फिटनेस करनी है सीरियसली, आज भी लग रहा होगा, लेकिन कल यार अभी यार ये डिमांड है, अभी यहाँ जाना है, अभी इसकी शादी में जाना है, उसने बुलाया, ये करना। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि और कोई नहीं आ रहा करने, ठीक है। तुम करते रहोगे। बच्चे बच्चे इंडिया में बहुत करते हैं लोग, है ना, बच्चे बच्चे। मैं इतना कंट्रोवर्शियल चीज़ पे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मेरे 2 बेटे हैं अभी, वो 21 साल के हो गए, वो कॉलेज में हैं। वो रात के 3 बजे तक भी पार्टी करेंगे, सुबह 6 बजे उठ के। वो 21 की उम्र ऐसी होती है, तो तुम क्लास चले जाओ, ठीक है। मैं अगर 3 बजे तक पार्टी कर लूँ ना, मेरे को 1 हफ्ता लगेगा नॉर्मल होने में। किसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे कि बच्चों को? मुझे। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चे बच्चे सर। क्यों भाई, तुमने मरना है, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और पता क्या होगा, तुम घिस घिस के कर करके अपने आप को बर्बाद कर लोगे, अपनी हेल्थ बर्बाद कर लोगे, अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे, औरों के लिए, बच्चों के लिए भी। और एक दिन बच्चे पता क्या बोलेंगे, हमने कब मना किया था, आप अपने लिए जी लेते, हमने थोड़ा ना बोला था कि आप ये चीज़ सैक्रिफाइस करो। इसलिए कोई नहीं बोलेगा, बीवी नहीं बोलेगी, हस्बैंड नहीं बोलेगा, कोई नहीं आगे बोलने वाला मैम आपको कि आप अमेजिंग वाइफ हो, अब आप अगले साल अपने लिए जियो, आप बहुत अच्छी मम्मी हो, आप बहुत अच्छे पापा हो। कोई नहीं बोलता, खुद बोलो भैया, खुद का ध्यान रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। बिकॉज यू नो आई रियली वेंट इनटू कि मोटिवेशन स्पीकर बोल के जाते फिर इफेक्ट क्यों नहीं था। बिकॉज फंडामेंटल चीजें नहीं कर रहे ना, आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो फिर कैसे। This is called master simple English, not so applicable here. When I give this to students, it's more applicable there. I'll move on. No cheap dopamine is another rule. देखो, डोपामीन क्या है कि आपकी ब्रेन में ना एक चीज़ है जो आपको रिवॉर्ड देती है, और आप कहते हो फिर और चाहिए, वो होता है डोपामीन। अगर आप चिप्स खाते हो तो एक खाते हो तो एक के बाद एक खाते ही जाते हो, तो आपके ब्रेन आपके हाथ को सिग्नल दे रहा है कि मुंह में डालता रहे, मज़ा आता है। वो डोपामीन है किस लिए? वो डोपामीन होता है जब आप मेहनत करते हो ना तो अच्छा लगता है, तो आप नहीं तो मेहनत करोगे ही नहीं। अगर आप एक अच्छा जिम जाओगे, आपको बाद में अच्छी फीलिंग आती है। आप एक पूरा दिन अच्छा काम करते हो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड में। वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि तब आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, नहीं तो आप एफर्ट करोगे ही नहीं। ये बड़ा डेलिकेट सा सिस्टम है, लेकिन हम इंसानों ने क्या किया है, हमने इसको हैक करने का तरीका सोच लिया है। बहुत सारे तरीके हैं, सीधा डोपामीन रिलीज हो जाता है बिना कोई मेहनत किए, जैसे कि चिप्स, जैसे कि गुलाब जामुन, जैसे कि दारू, जैसे कि सुट्टे, जैसे कि पॉर्न, जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि वीडियो गेम्स।
जैसे कि इंस्टाग्राम के रील्स, इन सब में वही एक ही चीज़ है, ब्रेन का सर्किट तो सेम ही है, उसमें वही हो रहा है। ये सस्ते नशे हैं एक तरह से। लाइफ में सस्ते नशे नहीं होने चाहिए, मार डालते हैं, खत्म कर देते हैं आपको। इसे अय्याशी कहते हैं, और अय्याशियां मार देती हैं। मजे करो, पर मजे वो करो जो मेहनत वाले मजे हैं। आई नो, लगता है मजे का तो मतलब ही होता है मेहनत नहीं करनी, पर नहीं, सिर्फ मजे करोगे ना, मौत। क्योंकि ये जो सस्ते नशे हैं ना, ये एडिक्शन बन जाते हैं, और एक बार ये एडिक्शन बन गए तो ये आपको बर्बादी की तरफ ही लेके जाते हैं। फिर ये आपको रूल करते हैं, और आप फिर नहीं पीक परफॉर्मेंस दे सकते, आपकी ग्रोथ बंद हो जाती है। कोई एक चीज़ आपको पकड़ लेती है जो आपकी डाउनफॉल का कारण बन जाती है। इसलिए जब भी कोई इजी प्लेजर हो, सस्ते नशे हो, कि एक बोतल खोली और मज़ा आ गया, बहुत ध्यान से रहो, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। हमारे ब्रेन के लिए वो दैट इज़ नॉट द सर्किट, वो तो हमने निकाल लिया तरीके। सर्किट इज मेहनत करो फिर मज़े करो। मेहनत के मज़े मेहनत के बाद वाले होने चाहिए। जॉगिंग करके आओ, कोई क्रिएट करो, एक पेंटिंग बनाओ, उसके बाद जो मज़ा, दैट इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी। पर हमने हैक करना सीख लिया, ईजी है, एक बुक पढ़ लो, थोड़ा एफर्ट लगता है, उसका मज़ा अलग है। बट आप सिर्फ ज़ीरो एफर्ट वाली चीज़ें करके मज़े करोगे, इवेंचुअली मज़े आने भी कम हो जाते हैं। जो सिगरेट पीता है उसे भी पता है कि शुरू में जो किक आता था बाद में नहीं आता, और एडिक्शन अलग प्रॉब्लम है। सो डोंट डू दैट। तो क्या करना है? चेज हार्ड थिंग्स। रूल 6 इज टू चेज हार्ड थिंग्स। जिंदगी में मुश्किल चीज़ों के पीछे भागो। मुश्किल चीज़ें ज़रूरी हैं, मुश्किल चीज़ें नहीं करोगे आप खुश नहीं रहोगे। आप भी, आपके बच्चों को भी ये लगता है माँ बाप पागल है हमारे, ये कौन सी जनरेशन क्या है, मेहनत करने वाले। टुडेज जनरेशन डजंट वांट टू वर्क हार्ड, वी वांट वर्क लाइफ बैलेंस। यार तू वर्क तो शुरू कर, फिर तो बैलेंस की बात करेंगे। तो ये जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये बकवास है। यू हैव टू हैव हार्ड थिंग्स इन लाइफ। वो अगर नहीं होगा ना, आप बोल सकते हो कि क्यों करना है, आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं आपको ज़िंदगी का मज़ा बताता हूँ क्या है, ज़िंदगी का फॉर्मूला क्या है। ज़िंदगी का फॉर्मूला है स्ट्रेस रिकवरी, स्ट्रेस रिकवरी, स्ट्रेस रिकवरी। ऐसे लाइफ जीनी है। सिर्फ स्ट्रेस होगा मर जाओगे, सिर्फ रिकवरी होगी मर जाओगे। व्हाट डज दिस मीन? काम ही करे जा रहे हो, नींद खराब कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग रिकवरी। खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, यू आर जस्ट एंडलेसली टेंस इन योर माइंड बिकॉज देयर इज सो मच वर्क प्रेशर, यू विल हैव डिजीजेस, यू विल डाई। रिकवरी मतलब खा रहे हो, सो रहे हो, पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, इवेंचुअली एडिक्शंस कम, मेंटल हेल्थ विल सफर, यू विल डाई। बट स्ट्रेस एंड रिकवरी करते रहोगे, लाइफ चलती रहेगी। इट इज लाइक इफ आई टेल यू कि पूरी जिंदगी बस अब छुट्टी पे जाना है, तो ओके यू विल गो टू बाली। पहले हफ्ते अच्छा लगेगा, 2 हफ्ते बाद बोर हो जाओगे, यार ठीक है कितने मसाज कराएं, घर चलो अभी, ठीक है। मैं सिंपल मसाज की बात कर रहा हूँ, इस ग्रुप में पता नहीं क्या सोचते रहते लोग। तो एनीवे, सो यू नीड हार्ड थिंग्स, यू नीड समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर यू एट एनी एज। ये नहीं कि अब हम सेटल हो गए सर, अब हम 50 के हो गए, अब हम 40 के हो गए, अब नहीं, हम कुछ तो चाहिए। इट डजंट नीड टू बी द सेम थिंग। मे बी इट वॉज करियर फर्स्ट, नाउ इट्स हेल्थ, मे बी इट वॉज समथिंग एल्स, नाउ इट्स रिलेशनशिप्स, योर फ्रेंड्स, समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू, बट यू मस्ट हैव इट, राइट। नंबर 7, ईट द एलिफेंट। हाथी कैसे खाते हैं? हाथी तो बहुत बड़ा होता है, हाथी कोई नहीं खा सकता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं हाथी के छोटे छोटे पीसेस कर दो, तो 2-3 साल में एक आप एक हाथी भी खा लोगे। लाइफ यही है, हाथी खाना पड़ता है। मेरी इंट्रोडक्शन हुई, मेन पॉइंट्स क्या बताए, IIT से है, IIM से है, ये बुक्स हैं, वो सब में एक हाथी खाना इन्वॉल्व था। कोई भी बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट है, उसमें एक हाथी खाया जाता है। बिजनेस नहीं बनता 6 महीने में, बुक नहीं लिख, करियर नहीं बनता बुक का 2 हफ्तों में, IIT का एग्ज़ाम नहीं होता 6 हफ्तों में। यू हैव टू वर्क फॉर ईयर्स। ये आपको याद रखना है। अगर लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, कुछ बनना है आपको, आपके यहाँ लाइक द सम फंड मैनेजर, अगर आपको अपना नाम उस स्पॉन्सर में चाहिए एक दिन, जो कि हो सकता है, यही होना चाहिए ना आपका गोल। आपका गोल होना चाहिए एक दिन एक स्पॉन्सर मैं आऊँगा वहाँ पे,
ये होगा, और वो हो सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि यू हैव टू ईट द एलिफेंट, टाइम लगेगा। और वो जब जो हाथी खाने का टाइम होता है वो बड़ा बोरिंग होता है, क्योंकि आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिल रही, कुछ कोई आपको नहीं कह रहा अच्छा कर रहा है, बट लगे रहो, बस यही। नंबर 8, बी द कॉकरोच। कॉकरोच का क्या मतलब है? कॉकरोच सबसे अडेप्टिव क्रीचर है दुनिया का। डायनासोर के टाइम भी था, आज भी है। कॉकरोच को हम खत्म नहीं कर पाए आज तक। पूरे इंसान लगे हुए हैं धरती के उन्हें मिटाने में, दे गॉन स्प्रे हिट, कोई खत्म नहीं कर पाया। टाइगर सारे मर गए, कॉकरोच नहीं मरता। क्यों? क्योंकि कॉकरोच कहीं भी रह लेता है, कैसे भी रह लेता है, ठंड में भी रहता है, गर्मी में भी रहता है, किचन में भी रहता है, कार में भी रहता है, जंगल में भी रहता है, कहीं भी रहता है। आप जो मर्जी बिजनेस करो सर, बिजनेस बदलता ही रहेगा। मैंने जब अपनी बुक्स लिखी थी, इंडिया में मोबाइल फोन भी नहीं थे, हार्डली थे। कैंपस में मेरी बुक्स इतनी पॉपुलर थी क्योंकि और कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं था बच्चों के पास। वो एक बुक के 10-10 पीसेस करते थे। पहले 300 पेज की बुक के 30 पेजेस पार्ट 1 पार्ट 2 करके लोग बांट बांट के पढ़ते थे। इट वॉज सो मच क्रेज। नाउ आई हैव टू कम्पीट विद आईफोन विद अमेजिंग 5 GB डेटा अ डे। लोग कुछ भी देख सकते हैं उसमें, और मेरा अक्षर किताबें पढ़नी है उन्हें। इमेजिन, सो व्हाट डू आई डू व्हेन द वर्ल्ड हैज मूव्ड टू वीडियो? डायनासोर की तरह मैं भी कहता भाई ये तो गलत बात है, मेरा टाइम खत्म हो गया अभी, और ऐसे मैं भी वीडियो बना देता हूँ यार। तो मैंने भी बना दिया यूट्यूब के वीडियो, मैंने भी इंस्टाग्राम पे चालू कर दिया अपना ड्रामा। इट्स ओके, बिकॉज कॉकरोच यही करता। आपका भी बिजनेस बदलेगा। अब लोग कह रहे हैं एआई बताएगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ नहीं बताने वाला एआई। अगर ऐसे होता तो सर, मेरे को भी बोल रहे थे एआई, अब तो एआई किताबें लिखेगा। लिख लो सर, किसने मना किया है? ऐसे नहीं होता, वो तो नहीं होगा, बट यस इट विल कम इन सम वेज। इन सम वेज आपका काम आसान करने के लिए तो आएगा ही। इट कैनॉट मेक यू मनी लाइक दैट, बट इट कैन बी यूज प्रॉपरली। 100% यू हैव टू लर्न इट। खाली बैठे हो, जनरली एआई के टूल्स सीखते रहो। मे बी इट्स नॉट एप्लीकेबल टू योर बिजनेस टुडे, लेकिन सीखो जो भी है। आई मीन चैट जीपीटी वी ऑल यूज्ड, बट देयर आर अदर थिंग्स लाइक कर्सर, थिंग्स लाइक दैट। यू जस्ट लर्न, वीडियो देखते रहो, यूज करते रहो। हो सकता है आपको ये आइडिया आ जाए, यार इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन में, ईमेल ड्राफ्टिंग, लॉट ऑफ थिंग्स। यू विल हैव टू डू इट। या फिर रोते रहो कि ये तो हमें समझ नहीं आता, ये तो हमने करा नहीं है। ऐसे नहीं, जिंदगी बदलती है, बिजनेस बदलता है, हम भी, इंसान भी बदलता रहता है, यू नो। सो यू हैव टू बी लाइक दैट कॉकरोच कि हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे पर हम मरेंगे नहीं। दोज कंपनीज, दोज पीपल डू बेस्ट इन लाइफ। 21 साल से मेरा भी ड्रामा चल रहा है। कब से मेरी बुक आई थी, मैंने कभी नहीं सोचा था इतना खींचेगा, लेकिन ऑफ अडेप्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ दैट इज वॉट मेक्स द बिग डिफरेंस इन माई करियर। बिकॉज आई हैव नॉट डन वन मीडियम, आई हैव नॉट ओनली डन बुक्स, देयर इज मूवीज, टीवी, यूट्यूब, social media, all kinds of things are happening because I know that's the world we are in today. Number 9, connect with people. देखो सर, आप हो तो पैसे के धंधे में, लेकिन आपको भी ये बात पता है कि धंधा लोगों से चलता है। बिजनेस कोई भी धंधा हो, चाहे इवन एज हार्ड कोर एज मनी बिजनेस, इट इज runs on people, you know. I was in a company called Goldman Sachs in my banking days, और वहाँ पे एक saying थी, हमारा CEO बोला करता था कि हमारी कंपनी के सारे एसेट्स लिफ्ट से रोज सुबह ऊपर आते हैं और शाम को नीचे चले जाते हैं। ये हमारी कंपनी का, और कोई वो बैलेंस शीट पे जो पैसे हैं वो थोड़ा है। द मेन एसेट इज द पीपल हु कम इन एंड लीव एवरी डे। ये है हमारी कंपनी। अल्टीमेटली इट्स पीपल बिजनेस। ये मत सोचो कि इट्स ऑल अबाउट पीपल। यू, योर टीम, दे मस्ट बी गुड पीपल पर्सन। और यहाँ जो आए हो, ये कॉन्फ्रेंसेज आर टू कनेक्ट, ये बहुत वैल्यूबल हैं। इधर से आप 2 + 2 = 5 लेके जा सकते हो। द ग्रोथ, इट्स नॉट जस्ट द मोटिवेशन स्पीकर और द थीम इज ग्रोथ, दिस इज ग्रोथ। इफ यू एक्सचेंज बिजनेस कार्ड्स, फिगर आउट हाउ वी कैन डू बिजनेस टुगेदर, कैन वी पूल रिसोर्सेज, क्या करें, what are the things we can do, what आप क्या सोच रहे हो, what are the challenges you are facing, how have you handled this problem. It's very important. You should know this, your kids should know this. People who know how to connect with people ने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी हैं। मेरे कई दोस्त हैं, उनको कुछ नहीं आता टेक का, इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज खड़ी हुई हैं क्योंकि उन्हें लोग ढूंढने आते हैं। जो टेक कर देता है, कोई पैसा ले आता है, कोई ये करता है, वो बीच में बैठ के मलाई खा रहे हैं। ठीक है भाई,
तूने क्या करा उस बारे में? कुछ नहीं करा, तेरी गलती है। एंड इट्स ओके, हम सब ने गलतियां की हैं, हम सब गलतियां करते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो परफेक्ट है। जो कह रहा है परफेक्ट है वो झूठा है, राइट? बट द अकाउंटेबिलिटी लेना, दिस इज बेसिकली टेकिंग एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी। अगर आपकी कंपनी छोटी है आज और सामने वाले की आपसे 4 गुना बड़ी है, इट्स योर फॉल्ट। ये मत बोलो कि उसने ऐसे कर लिया, उसने ऐसे कर लिया, नहीं, आपने क्या नहीं करा। वंस यू से इज माई फॉल्ट, ओके क्या गलती है, क्या मैंने कहाँ पे हमारे गड़बड़ हुई है, then the answer comes. So that's why it's your fault is very important. And then the last rule, which I had, even this is there in the book, so it's not like I did it for this conference. I truly believe you must earn, save and invest. Every human being on this earth. मतलब मैंने एक लिटरली यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है कि किसी भी तनख्वाह पे कैसे पैसे बचाएं। 10,000 पे, 1 लाख पे, 10 लाख पे, 50,000 पे, हर पे आपको एक सेविंग की आदत होनी चाहिए। स्पेशली आई फील लॉट ऑफ यंग जनरेशन, दे डोंट बिलीव इन सेविंग। उनको लगता है अर्न एंड बर्न, आईफोन चाहिए ऑरेंज वाला। क्यों? परसों तक तो नहीं चाहिए था, अब आ गया तो सबको ऑरेंज वाला फ़ोन चाहिए। क्यों भाई? बस चाहिए, ठीक है? तो ऐसे तो अनगिनत हैं चीज़ें। एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इफ़ यू कैन ईजिली अफोर्ड इट। लो यार, तुम 10 लो ऑरेंज फ़ोन, लेकिन अगर नहीं अफोर्ड कर सकते देन दैट्स नॉट द टाइम टू डू इट, यू नो। सो अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लाइक टोल्ड यू, मेरी पूरी लाइफ बदल गई इसकी वजह से। इट्स नॉट जस्ट एप्पल, अदर शेयर्स ऑल्सो आई बॉट, बट लाइक it's shares, it's mutual funds, it's real estate, lot of things I've done, maybe we'll discuss in this small Q&A after this. But it has been a cornerstone of my life, and I am not, main thing is A, I was able to leave banking, and B, मेरा घर मेरी बुक्स से नहीं चलता, which means कि मैं जो बुक लिखता हूँ from purity of the heart से लिखता हूँ। ये नहीं कि भैया बच्चों की फीस देनी है चलो लिखो जल्दी, ऐसा नहीं है। Never. If I don't feel like I have a great story, 1 साल नहीं लिखेंगे, 2 साल नहीं लिखेंगे। अभी माई न्यू बुक इज कमिंग 1 अक्टूबर, 12 years, माई मेस्ड अप लव स्टोरी। एक 33-year-old लड़का और 21-year-old लड़की, बट दैट स्टोरी केम टू मी 4 साल के बाद आ रही है। 4 साल के बाद आई एम राइटिंग, बिकॉज दिस इज माई बैकबोन, दिस प्रोटेक्ट्स मी, दिस प्रोटेक्ट्स द आर्टिस्ट। तो पैसे का तो बड़े मज़े हैं, हाँ ठीक है, आईफोन आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, यू नो थोड़े घर आ जाते हैं बढ़िया, लेकिन सबसे बड़ा मज़ा पैसे का यही है कि यू कैन लिव अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव, यू नो। वो दुनिया तुम्हें जीने देती है वो ज़िंदगी जो तुम जीना चाहते हो, एंड दैट इज़ सो वैल्यूबल, यू नो। दैट इज़ जस्ट फॉर दैट दिस हैज़ टू बी वर्थ इट। इट इज़ नॉट कि लालच है, इट इज़ नॉट मटीरियलिज्म, इट इज़ मोर द फ्रीडम। आई वुड नॉट हैव बीन अ राइटर इफ आई डिडंट हैव मनी, बिकॉज मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सो nobody would have known that Three Idiots wouldn't be there in this world, because if this wasn't there. So this is a very underrated, but this is the plumbing of our life, financial planning, which a lot of people are ignoring all the time, you know. These are the rules. आपको वैसे भी मिल जाएंगे वैसे। ये मैं हूँ, देखो सर, पहले ये 15 साल पुरानी फोटो है। I was 35, this I'm 50, close to, and you can see like I look happier, I look healthier. And I'm showing this photo to you, not that कि I'm some fitness influencer. मैंने लेट शुरू किया है और मैंने फिर भी रिजल्ट्स कुछ तो किए हैं, so आप भी कर सकते हो। That's the only reason I'm showing this photo to you. That's me again, 35 versus 50, you know. It's possible. मैं कोई नेचुरल एथलीट नहीं हूँ, मेरा कोई जॉब ऐसा नहीं है जिसमें कोई बड़े यू नो फिजिकल जॉब है। सो सेम लाइक यू कैन ऑल्सो डू इट, यू नो। आई रन नाउ, आई रन टेक पार्ट इन रेसेस, ऑल दिस कैन कम इन लाइफ यार। अभी तो बहुत जीना बाकी है, अभी तो मज़े का टाइम आया है, अभी तो बच्चे पल गए थोड़े बहुत, अब उनको थोड़ा साइड पे करो। तुम्हारे लड़के ने तुम्हें पूछना, जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी ना, बाप को किसने पूछना है, माँ को किसने पूछना है उसके बाद, उनको तो वही परी लगती है। हम भी वैसे ही थे ना, गधे वैसे। तो आई नो 2 states ही लिखी है ना मैंने, माँ के ऊपर तो किताब नहीं लिखी, बीवी पे ही लिखी ना। तो ये तो आप अपने लिए लीजिए ना, अभी तो टाइम है मज़े करने का। सो डू दैट, एंड देन यस यू कैन रियली हैव enjoy the financial freedom, and your clients will see it कि आप भी ऐसे जी रहे हो, they'll want to be you, and that will bring you business also. So thank you so much guys.
So I hope everyone enjoyed the talk. Can it be louder? So how many of you are going to follow all the 11 or few of them with immediate effect? चेतन सर ने स्टार्ट करते हुए ही बोला था आई नीड टू हियर अ यस. एम आई राइट? नहीं नहीं, मैं तो राइट हूं. मैं जो चेतन सर ने बोला मैं वो पूछ रहा हूं. कनक जी. सो चेतन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि यस he doesn't write for earning and now today he is financially free. So I'm sure people would like to know where Mr. Chetan Bhagat ji invests and how he manages it. Am I right? तो सर हेलो बंद किया सर. ओके, आई विल टेक दिस. हाय. ओके ओके. तो आई हैव आई वाज वर्किंग इन अ बैंक and shuru se hi, I had a boss in the beginning. He taught me how to buy shares, and I have been very fond of the share market. But I also know that being fond means a lot of people keep trading in and out a lot. But my strategy is very simple: buy good companies. It's very boring actually. Buy good companies and think like आपकी अपनी दुकान है. अगर आप मेरी अपनी साड़ी की दुकान होती और एक दिन सेल कम हो गई तो मैं ये थोड़ा ना कि दुकान बंद कर देता या बेच देता, अगले दिन फिर खरीद लेता. ऐसे तो नहीं करता. अब हाँ, हमारी साड़ी की दुकान तो है, तो चाहे वो एप्पल हो चाहे इंडिया की कोई कंपनी हो, इफ़ आई लाइक अ सर्टन कंपनी एंड इफ आई थिंक it will be remaining for the next 10-20 years, I just buy and keep them. Even today I would say I'm of my total thing, maybe 80% is in stocks, 18% is in real estate, and 1-2% cash. Because वो चाहिए कि बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो वो चाहिए. हाँ, मतलब वो 99 भी हो सकता है कई बार. So I like to keep everything fully invested and I don't take leverage, and I take good companies. I don't trade in and out unless absolutely necessary, like literally keep the stock for 10 years 20 years, because वो time लगता है. And real estate may be same, you have to buy and hold. Shut up and wait. बड़ी सिंपल. आपका मेनली काम यही है, लोगों को यही कहना, चुप बैठ रहो. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू कैन ऑलवेज से कि थोड़ा और वो म्यूचुअल फंड वाले का भी फोन आता होगा आपको, सर ये बिकवा के ये खरीदवा दो, 20 फंड खरीदवा दो, विच इज लाइक पॉइंटलेस. तो यू हैव टू बी वेरी कॉमन सेंसिकल अबाउट इट. एंड yeah, I mean, it's been good. It's been more than 21% IRR for the last 17 years, and that has been fantastic. I mean, it has changed my life, like I told you. तो हाँ, क्योंकि राइटर नॉर्मली ना एक इमेज आती है कि गरीब होगा. एक है जैसे रियल एस्टेट वाला आया कमरे में, फाइनेंशियल एडवाइजर आया, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अमीर आएगा, गाड़ी. राइटर हाँ, झोला होगा, चप्पल होगी. मेरे को नहीं पसंद. आई लाइक मनी and money is good, like I told you, for the freedom, for everything. And this is how I've done it. चेतन जी, मैं आपका कुछ YouTube सुन रहा था, और इस सिलसिले में हम लोगों ने कल एक गेम भी लॉन्च किया है. ओके, मैंने हमारे 23 गेम्स है, उसमें से 2 गेम. सो दीज गेम्स आर नॉट यूजुअली, हमारे सारे गेम्स में इक्विटी, डेट और ये सब फिगर्स होते हैं. कल वाले दोनों गेम हम लोगों को विवश कर रहे हैं इमेजिन करने के लिए. सो आपकी मैंने एक बात सुनी कि लोग आजकल किस तरीके से एक फोन वर्सेस रीडिंग अ बुक एंड वर्सेस इमेजिन, आप उसके ऊपर में कनेक्ट्स को थोड़ा, मैंने डॉट्स को कनेक्ट जी हाँ. सी, मैं सिर्फ इसलिए बुक्स का नहीं कह रहा कि मैं राइटर हूँ. लाइक आई सेड, मेरी मूवीज भी हैं, अभी तो टॉक है, इसमें कोई राइटिंग नहीं. तो इट्स नॉट लाइक कि मेरे को इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है. बट आई जेन्युइनली फील कि इट इज़ वेरी इजी टू नॉट रीड नाउ, बिकॉज आप टाइम पास के लिए फ़ोन खोल लो. सो यू हैव टू फर्स्टली रिमाइंड योर सेल्फ कि भाई नहीं, मेरे को पढ़ना है. इट इज़ समथिंग लाइक जैसे खाने का भी यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि नहीं, हेल्दी खाना खाना है, अनहेल्दी नहीं खाना. और अनहेल्दी खाना हर जगह है, हर जगह अनहेल्दी मिलता है, हेल्दी ढूंढना मुश्किल हो जाता है. सेम वे एंटरटेनमेंट भी जंक फूड की तरह भी हो सकती है और थोड़ी होलसम हो सकती है. सो व्हेन यू रीड, 2 चीज़ें हो रही हैं. एक, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, मेंटल एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट है. सेकेंड, आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी हो रही है. अगर मैं आपको कहता हूँ कि एक लाल साड़ी पहन के लड़की झुमके लगा के कमरे के अंदर आई, इफ़ यू रीड दिस, योर माइंड हैज़ इमेजिन्ड इट. अगर मैं आपको टीवी सीरियल में वही सीन दिखा दूं,
देयर इज नो इमेजिनेशन रिक्वायर्ड, आपने देख लिया. सो आपके ब्रेन में इतना ज़्यादा डेप्थ में गई नहीं वो थॉट, तो वो इट्स नॉट गुड फॉर द ब्रेन. बट इफ यू हैव अ रेगुलर रीडिंग हैबिट, not only you learn new things, but your brain stays very sharp and stays very creative and imaginative. So that's, I think, necessary. Now creative brain is not just to write books or to make a painting. You need creative brain to plan your future. अगले 10 साल में तुम्हारी लाइफ क्या होगी? If you are not creative, if you are not imaginative, you can't even imagine. पता नहीं यार, कभी सोचा नहीं. But if you are somebody who can dream, हाँ यार ऐसा घर होगा, ऐसी जगह रहूँगा, जॉब ऐसी होगी, बच्चे ये करें, you need imagination for that. So you need to read. And I think all the top people in the world, all, they read. कुछ तो रीजन होगा ना, उनके पास तो टाइम, उनके पास तो इतने पैसे हैं, टाइम कम है, ऐश करने का इतना टाइम है, तो they are not always doing ऐश. They love to read. So please read something. जो भी आपको इंटरेस्ट आता है. It could be finance books, it could be my books, it could be anything. But please read. 80% of the MFDs don't read. That's what my observation is in last 25 years. और ये जो जितने CEOs हैं ना, जो highly paid CEOs हैं, राघव बैठे हैं, आशीष सोमैया कौन है हैं, हाईली अनिल पेड गौर, सर, जरा बताओ तो. ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये खूब पढ़ते हैं लेकिन. नौकरी वाले हैं ना, ये है तो नौकरी. मैं गुजराती पीपल है. हाँ, मैं अहमदाबाद में आई वाज स्टडिंग ना MBA, तो वहाँ पे तो सिंपल सा रूल था, लोग अगर अपना धंधा नहीं है, लोग बेटी नहीं देते. हाँ, इट्स लाइक चाहे भाजी वाला हो. कलकत्ते में तो बहुत आराम से मिलती है. हाँ नहीं, वो पूरे इंडिया में सरकारी नौकरी पे तो पागल है लोग, बट नॉट देयर. एंड नहीं नहीं, सो पीपल शुड रीड यार. व्हाई यू डोंट वांट टू रीड? ऐसा इट्स So ऑलवेज. raise of hand, how many of us will read every day? If not हाँ, यार 2-3 दो पेज पढ़ pages, लो. सारे लोग हाथ तो उठा लो. 2 पेज पढ़ लो. हाँ, 2 पेज पढ़ 2 लो. पेज पढ़ लो, साल के 700 पेज हो जाते हैं. तो यू नो इट्स 2-3 बुक्स, बट यू आर, they always say well read person, they never say well TV watched person. क्यों? You know, so it changes your personality if you read a lot of books. आते हैं ऑडियंस पे भी आते हैं, 1 मिनट. So now one thing which I जो एक हीरो होंडा की ad है, fill it, shut it and forget it on his investments part what he told. Just to continue with that, sir, can you just throw some light on your investment journey? I'm sure the journey, जैसे आपने बोला stress, फिर हाँ. revive, stress, revive. So journey also would have been there. How? Yeah, you know, there have been, when you are investing for so long, मतलब it's been more than 25 years, you have seen it all. You've seen the booms and busts. So I had started working in 1997. So that's when the money came. थोड़े बहुत, जितना भी, very little, but I started investing then. And then 98, 99 तक थोड़े से savings हुए and invest किए. But 2000 में there was a huge .com bust. Literally I lost 80% of my money. In all, and it is very like, ऐसे लगा अब तो ये गलती करी. Luckily मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था. I was not married then. It was my fault. कि मैंने क्या किया था कि मैंने बस पेल दिया. जो something.com था, लगा दो, चिपका दो. Basically मैं वही कर रहा था. वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है, वो भी ले रहा है. And they were not, I didn't see कि this company has any fundamental proprietary thing या कोई इनका product लोगों को पसंद है. There was no thought put. It was just tech बढ़ रहा है, ये नई tech का IPO है, इस पे लगा दो, इस पे लगा दो. और बहुत लोगों ने पैसा गवाया उसमें, और मैंने भी गवाया. So that was a very big lesson. Then there was a subprime crisis in 2009 where a lot of money was lost and a lot of people were selling. And at that time, like I said, in fact, it's time to buy. And it was very difficult to buy at that time. September 11 जब हुआ था, there was another crash that happened. So there have been cycles which have been very difficult in a way, but they teach you a lot. And not all, I agree that it's not always shut up and wait. Sometimes you need to exit. And कभी ना कभी तो अच्छी चीजें भी लेनी है. I had to buy a house in Dubai. अब मैं इन्वेस्ट करके बैठा रहूँ कि भाई और बढ़ जाएगा, और बढ़िया लेंगे, तो यार जिंदगी भी तो खत्म हो जाएगी ना. जिंदगी IRR तो नहीं, ऐश भी करनी है. तो ऐश का बैलेंस है, मतलब अच्छी ऐश करनी है, होलसम मतलब ऐश करनी है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू समटाइम्स विथड्रॉ एंड से यार अब जिंदगी फाइनाइट है, मैं क्या करूँगा, IRR का क्या करूँगा 80 इयर्स पे. अभी करो ना थोड़े बहुत मजे, जब चीज़ें हिल डुल रही हैं अभी. तो मैं ये लोग ये टेबल जो है ना सर, ये इनका दिमाग ना
मैं कुछ नहीं बोला अभी। एनीवे एक और नॉर्मली लास्ट रो होती है क्लास में शरारती, ये फ्रंट रो वाले हैं। बिठाया है आपने, ये सीईओज है, ये वेल रेड है हमारे। एक और सवाल, अक्सर ये देखा जाता है ना, हम एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भागते बहुत हैं, दौड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहना, बिजी दिखने की सबको ज़्यादातर आदत है। इन योर लाइफ व्हाट वी हैव सीन, योर वाइफ इज वर्किंग इन्वेस्टमेंट बैंक। छोड़ दिया सर उसने। अच्छा भी छोड़ दिया? नहीं नहीं, पहले आप पहले तो कर घर रही में है, बैठ उसे के, देखा चल गई बुक, उसने कहती है मैं छोड़ रही हूँ। नहीं, आप घर में बैठ के लिखते रहते थे, हाँ। हाउस हस्बैंड, हाँ। और वो काम करके आती हाँ। थी, तो वो जो समय था कैसा रहा? वो बड़ा बुरा था सर, बुरा था। क्योंकि मेरी सास भी तब साथ रहती थी, हमारे बड़े बच्चे छोटे थे। मतलब यार, इतने सास बहू के सीरियल ठीक है, इतनी औरतें बोलती रहती है मेरी सास खराब है, एक आदमी ने कह दिया तो मतलब ऐसे हंगामा मच जाता है। तो पर लाइक सास दामाद का भी डायनामिक है ना। डायनामिक ये है कि ऐसे अग्रेसिव नहीं होता, और ऐसा नहीं कि रसोड़े में कौन था, बट आपकी वाइफ तैयार होके बैंक जा रही है, आप शॉर्ट्स पहन के अपनी सास के साथ बैठ के अखबार पढ़ रहे हो। एक ह्यूमिलिएशन तो है थोड़ी, कि सास की एक लुक आती है आपको कि ये कितना निठल्ला दामाद है। अब कैसे समझाऊं कि मैं राइटर हूँ, मैं लिख, तो क्या देख के या अपनी ब्याही और थी? उनको लगता है कि ऑलरेडी स्कैम हो गया ये तो, क्योंकि वो मतलब तमिल थे वो, और ये पंजाबी से शादी कर ली, और इनका स्कैम ये था कि पढ़ी लिखी हमारी बेटी लेके उससे नौकरी करवाएंगे और ये घर बैठ के ऐश करेगा। तो वो एक थोड़ा था टफ। तो देन इवेंचुअली लकीली द बुक्स डिड वेल एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक दे बिकेम ओके। बट अभी भी कहीं ना कहीं उन्हें लगता ही है वैसे। हाँ, कट्टू उसमें और अब में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है सर, उनको अभी लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा किया हमारे दामाद ने, लेकिन अगर तमिल होता तो और बेटर था। वो नहीं हटता ना। तो हाँ अच्छा है, लेकिन ऐसे सुब्रमण्यम स्वामी होता तो कितना अच्छा होता। We can take some questions. You can stand. Please. माइक लीजिए सर, ताकि अदर्स। So you are in the banking sector, in the logical mind sector, and what triggered you to write the books? Because the books what you have written are like from all the emotional side and family side. So what triggered that trigger? How you could recognize it? हमेशा से ही शौक था। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन पीपल, एंड यू नो कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ करा, इंजीनियरिंग करी, एमबीए करा, बैंक में नौकरी ली, इंटरनेशनल जॉब ली, डॉलर भी कमाने लग गए, लेकिन इतने खुश नहीं हो यार। आई मीन आई फेल्ट लाइक आई वाज मोर हैप्पी इन कॉलेज, जब पैसे नहीं थे, दोस्तों के साथ चाय पीते थे उधार पे, एंड समहाउ इट वाज मोर लाइवली, मोर अलाइव, एंड आई एम वेरी, जैसे मैंने कहा ना, मैंने फर्स्ट लाइन भी बोली कि हम मिडिल एज में आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दिया बुझने लगता है, एक स्पार्क जो होता है ना अंदर का, वो आई फेल्ट दैट हैपनिंग। ये और लोगों ने कहा यही लाइफ है, जो कॉलेज के दिन गए वो मजे गए। मैंने कहा ऐसा क्यों है, लाइक व्हाई इज इट कि वो कॉलेज में ही मजे होते हैं, व्हाई कांट इट बी लाइक, आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू उछल कूद, उस तरह की उछल कूद हो सकती है हर वक्त, लेकिन एक स्पार्क तो होना चाहिए लाइफ में, एंड आई डिडंट फाइंड दैट स्पार्क, सो आई सेड आई हैव टू हैव सम हॉबी। तो मैंने हॉबी की तौर पे चालू की है राइटिंग, इट जस्ट बिकेम अ करियर, बट ऑनेस्टली आई वुड हैव मोस्ट, द प्लान वाज कि बैंकिंग में रहेंगे और हॉबी राइटिंग होगी। या Thank you. And one thing that can add to write, because many want to write the books here, but that one first step is not been done. So what is that first step? फर्स्ट स्टेप इज पेन खरीदो या लैपटॉप खरीदो और लिखो यार, करो, घिसो, और क्या, घिसे बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। सो जस्ट आपकी बातें सुन रहे थे, और वो जो सास एंड दामाद वाला जो आप बता रहे थे, तो इज इट कि टू स्टेट्स आपकी ही कहानी थी? इट वाज इट मेरी लाइफ है, आई मीन आई एम मैरिड टू अ तमिलियन, माय वाइफ इन लॉज आर तमिलियन, तो बट इट्स नॉट 100%, ओके, बट इंस्पायर्ड बाय, यस। इट वाज अ लवली मूवी, लवली बुक। Thank you, thank you. थैंक यू। सर हाँ, नेटफ्लिक्स में एक सीरीज में आप आए थे, डीकपल्ड बोल के, एक्टिंग, हाँ एक आध सो एक्टिंग दैट वाज वेरी नाइस।
You acted यार very वो nice. दिया उन्होंने चांस कि आप एक्टिंग करो हाँ, और कहा कि आपको चेतन भगत का ही रोल निभाना है। right, right. मैंने कहा अगर मैं ये भी ना निभा पाया हाँ, तो फिर कितने जूते पड़ेंगे कि यार ये तो खुद की एक्टिंग नहीं कर पाया। सो आई डिड इट फॉर फन, आई एंजॉयड इट, बट Right, sir. आई लाइक क्रिएटिंग, आई लाइक टू राइट द लाइंस, आई डोंट वांट टू स्पीक समवन एल्सेस लाइंस। right. मेरे को लगता है कि जो ओरिजिनल रचनाकार है दैट्स मोर अ राइटर, इवन दो एक्टर की विजिबिलिटी ज़्यादा है, बट दैट्स फेम इज नॉट माई गेम नाउ। सर आपके साथ कभी हुआ है वहाँ पर एक सीन है जैसे मान लीजिए कोई बुक शेल्फ में बेस्ट सेलिंग ऑथर का बुक्स है आर्या आके वो चेंज कर देता है मतलब आउट ऑफ करते हैं सर लोग, गड़बड़े करते हैं वो उसमें था, लेकिन आई मीन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन कि लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस हैपन इन द इंडस्ट्री। या थैंक यू वेरी मच सर। चेतन जी मेरे को जैसे क्योंकि आपने शुरुआत ही हेल्थ से करी है और हेल्थ इज़ वेल्थ, जनरली मेरे को लगता है ये बात पूरी दुनिया में या मतलब हम लोगों को यहाँ पे भी जितने लोग बैठे होंगे एक समय के बाद ही क्यों समझ में आती है 35, 36, 38, 40 के बाद कि हेल्थ ही वेल्थ है नंबर वन। और यूथ में स्पेसिकली बिकॉज कल्चर चेंज हो रहा है तो ड्रिंक कल्चर और बाकी सब कल्चर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, खाने पीने का कल्चर बढ़ रहा है, तो उन्हें गाजर मूली और ये सब खाना तो मतलब अपने आप को बेवकूफ़ कहलाने वाली बात हो गई। तो जैसे आप कल ड्यू में, आप कल मिरांडा में भी थे, आप मिरांडा हाउस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मतलब तो यूथ का क्या एक ऑब्जर्वेशन रहता है बिकॉज क्योंकि मैं भी क्योड़ी मिल का प्रोडक्ट हूँ तो इसलिए मुझे सर देखो प्रॉफिट अनहेल्दी में प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि अनहेल्दी खाने में प्रॉफिट ज़्यादा है। हेल्दी इंडस्ट्रीज बहुत कम है, मे बी जिम होगी एक या सम मे बी नाउ सम आर कमिंग लाइक हेल्दी फूड्स एंड सप्लीमेंट्स एंड ऑल दैट, बट ब्रॉडली देयर इज लॉट ऑफ मनी टू बी मेड इन अनहेल्दी थिंग्स। प्रोसेस्ड फूड्स आर चीपर टू मेक, पीपल कैन गेट एडिक्टेड टू देम एंड उसमें बहुत पैसा है, फार्मा में बहुत पैसा है। आपको हेल्दी रखने में कोई किसी का शौक नहीं है क्योंकि हेल्दी रख दिया तो फार्मा कंपनीज का क्या होगा। और फार्मा कंपनीज का भी आजकल लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि उनको समझ आ गया कि ऐसी गोली नहीं बनानी कि बंदा ठीक हो जाए, फिर क्या फ़ायदा, सर दर्द हुआ गोली खाई ठीक हो गए, एक गोली में ठीक हो गए आप तो सर। वो सब्सक्रिप्शन मॉडल चाहते हैं नेटफ्लिक्स की तरह, ऐसी दवाई बनाओ जो ज़िंदगी भर ले इंसान। इफ़ यू नोटिस अ लॉट ऑफ मेडिसिन आर लाइक दैट, स्टैटिन्स, डायबिटीज़ मेडिसिन, हार्मोनल मेडिसिन, दे आर जस्ट फॉर लाइफ बिकॉज सर उनका तो फिर एन्युटी आपको तो पता ही है लाइक हाउ द वैल्यूएशन वर्क्स, सो दे नीड सब्सक्राइबर्स, सो द बिजनेस इज दे, द वर्ल्ड डजंट लाइक कैपिटलिज्म डजंट वांट यू टू बी हेल्दी, you have to decide to be healthy, you know. Your attention or your kid's attention, nobody wants him to study. Meta wants him to be on Instagram all day because Meta will make more money. I have Meta shares, I'll make more money. जिंदगी उसकी बर्बाद होगी और अपनी जिंदगी बर्बाद करना परफेक्टली लीगल है, मतलब सरकार आपको रोकेगी नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, you can ruin your life. So a lot of it is self-regulation these days. We have to do, and same for you guys. I can also understand a lot of you guys will be in the hyper career mode कि यार मतलब, and I would end like maybe let's make it the last closing thing कि you know you must have that balance, career, health, relationships. इन तीन चीज़ों पे एक 3 लेग का टेबल कह लो, ये ज़िंदगी टिकी है। अगर आपके करियर में 8 आउट ऑफ 10 है अभी और आप सारी मेहनत उसको 9 आउट ऑफ 10 करने में कर रहे हो, लेकिन हेल्थ में 4 हैं, रिलेशनशिप्स में 3 हैं, तो वो टेबल आप एक लेग को पक्का करे जा रहे हो और बाकी तो छोटी रह गई, तो वो बैलेंस नहीं होगा टेबल अच्छे से। सो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस। मेरे लिए व्हेन आई वर्कआउट इन द मॉर्निंग आई सी इट एज पार्ट ऑफ राइटिंग, तब मैं उसे अपनी लाइफ में ला पाया। मुझे लगता था ना यार ये डिस्ट्रैक्शन है, काम अलग चीज़ है, अब कौन जिम जाएगा, तो नहीं जाते। पर आप बोलो ये गोइंग, मैं मालिक हूँ अपने व्हाटएवर एडवाइजरी ग्रुप और व्हाटएवर कंपनी का, अपने टीम का, मेरे को जिम जाना है, दिस इज पार्ट ऑफ माई जॉब, माई ऑफिस हैज बिगन, दिस इज ऑल्सो ऑफिस। यू हैव टू हैव दैट बैलेंस। एंड रिलेशनशिप्स, विदाउट रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ हस्बैंड, चिल्ड्रन, फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, यू विदाउट दैट इनरिचमेंट इन लाइफ इंसान मर जाता है। वी आर सोशल पीपल, कोई भी लाइक ऑलवेज ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज लिव टुगेदर, नहीं तो हम ऐसे सारे अपना अलग अलग रह रहे होते जंगल में अभी, तो वी नीड दैट ऑल्सो। सो मेक श्योर व्हेन वी लिव अवर लाइफ, नोबडी विल टेल यू, बट ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, इसकी रिपोर्ट कार्ड में जो आपके ग्रेड है वो क्या है ऑनेस्टली देखो,
और इम्प्रूव करते रहो एंड बैलेंस्ड वे में जियो. यू विल राइज ऑल्सो एंड यू विल बी हैप्पी ऑल्सो. थैंक यू. एक मिनट कनक कनक Thank you so much. कनक एक मिनट We'll have very little time now. कनक जस्ट ए मिनट Short? बिल्कुल पक्का? शॉर्ट बी शॉर्ट. जो बोलना है उन्हीं को बोलना है Okay. जी सर. एक गुस्सा था आपके ऊपर आज सामने आ गए हैं तो जानना चाहता हूँ आपसे ये टू स्टेट्स वाला मूवी में आपने वो फैमिली ड्रामा में पिताजी को उतना नीचा हर समय क्यों दिखा रहे थे कौन सी मतलब वो स्टोरी के पीछे आपकी कहा मतलब कौन सा आपके वो आया था आई डोंट नो जब स्टोरी बनाई यू नो एक्चुअली टू स्टेट्स फादर और सन की स्टोरी है. एक्चुअली एट द रूट वो फादर सन की स्टोरी है. लड़का लड़की तो शुरू में ही मिल गए हैं, पेरेंट्स को कन्विंस करना है. बट इफ यू रिमेंबर द मूवी और द बुक फादर और सन की नहीं बनती लेकिन एंड में फादर शादी पे आता है. सो इट इज अ फादर सन स्टोरी. दैट वाज द होल बैकबोन ऑफ द स्टोरी. नहीं उसकी इफेक्ट आया था बोल के मैं बस। पूछना चाहता हूँ बस सर आज के लिए इतना ही. आज के लिए Thank इतना ही you. काफी है. बाद में offline दिपेंदु discuss करेंगे. बाकी कोलकाता में. So thank you very much, sir. Can we all give a standing ovation to sir? Thank you so much. जोरदार तालियां एक बार और. Okay. Sir, two, three small things we need in your presence. So we will have to just, we will give you a memento a little later. But first, we would request you to give some of the mementos to our people. Can we have the list, please? On the screen, just after this, okay? माइक निकाल लीजिए. माइक. Chetan sir, you need. Sir, so all of you need to be very, very fast. You list you don't have? Nah, later, after this. Okay. So these are the Achiever Awards, the highest category of the awards as far as Financial Freedom Fraternity is concerned. All of them managing assets under management between 2,000 crores to 20,000 crores in this room. And so the first is Asset Plus. Can we have Nesh? And I will request all of you to receive the award and then we will all stand here. This picture we will be publishing in the Economic Times with Chetan sir, so all of us together. So after this award. Asset Plus Achiever Awards.
And sir, this is the next one. These are the fellows. We call them as our brand ambassadors for the whole fraternity, the financial freedom fraternity. These 9 people, we'll call all of them one by one. All of you can come. I think whatever we are because of all the volatility coaches, and special mention to the fellow volatility coaches for the year 2025. One by one, all of you need to come and we will have photograph and then we will all have a group photo. So we'll start with, next, wait. सबसे पहले शैबल कुमार भादुरी, जोरदार. Srikant Mathrubhai from Bangalore, Rajesh Saraugi from Guwahati, Prashant from Sangli, Sudhanshu Mahapatra from Bhubaneswar, Vipulesh Yadav from Lucknow, Shaibal Bhaduri from Jamshedpur, Srinivas Rao from Thane, Dipesh Mehta from Bangalore, Sanjay Rojkar from Sambhaji Nagar. So with all of them, Zordar Taliyan. So this is the second generation, the generation which is going to increase the assets under management of our industry. And we really look forward. Zordar Taliyan. Thank you so much.
सर फोटो हो गया है, लेट्स कम डाउन, टाइम इज शॉर्ट. बच्चों जाओ जाओ जाओ. अरे इतनी बड़ी फोटो तो हो गई अभिषेक. ओके ओके जस्ट. ओके अब फाइनली सर का दे दिया ना सर को. सर का कहाँ है? हाँ ठीक. राजेश जी आप अपना ले लीजिए. श्रेयांश, सुनील जी, नेक्स्ट ईयर लुक फॉरवर्ड टू ओके. सो विद दिस वी आर डन. सर का दे दिया ना सर को. सर का finally I will request Shushma and the task force team present over here to please come up on the stage. Only the task force. I hope. Don't worry, ये फोटो ईटी में नहीं आएगी. Thank you so much. With this, we'll request Chetan sir to please get down. Huh?